Hello, learners, and very welcome to Unacademy IES. So, this is another session for the aspirants who have already cleared 70th BPSC main examination, and now they are going to appear in the interviews. All right, guys, before I take you forward, let me tell you Unacademy IES is conducting mock interviews. All right, and you can get your proper depth analysis by our experts as well as the interview questions as well with current affairs information data analysis, all these things clubbed under one program, that is mock interview guidance program conducted by Unacademy IAS. You can connect with our team at the second floor, GB Mall, Boring Road, Patna. And with this, let's start our discussion. So, aspirant, in today's class, our first topic is Maoist fight. Okay. So, what is going on here? चल क्या रहा है यहाँ पर? What is the information and what is the relevancy of the topic? Aspirants, in near future, we heard about from the Home Minister of India, Union of India, Mr. Amit Shah ji. अमित शाह जी हाईलाइटेड दिस थिंग कि इंडिया में हमारे कंट्री में जो माविस्ट वायलेंस है, जिस एरिया को वी यूज टू कॉल रेड कॉरिडोर, ये वो एरिया हुआ करता था, वो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे जहां पर माविस्ट का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, माओ की जो आइडियोलॉजी है उसका एक इन्फ्लुएंस, जिसको इंडिया में in India we call this LWE. What we call this LWE, that is left wing extremism. All right. Okay. So Maoist क्या है? What is Maoist? What is left wing extremism and Naxal? Fine. So aspirants, you should know about these terms, क्योंकि इंडिया में अभी हमने जो रेड कॉरिडोर है उसे काफी कंट्रोल कर लिया है, श्रिंक हो गया है इंडिया में रेड कॉरिडोर. और अगर आप देखें, इट्स अ वेरी गुड न्यूज, ये बहुत अच्छी न्यूज है हमारे लिए फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी. ऑल राइट, इन द रीजन यू कैन see here in 2016 these were the districts affected by the Naxal activities, Maoist activities. All right. And you can see in 2024 बिहार के जो एरियाज हैं, या यहाँ सॉरी ये बिहार का एरिया है, एंड यू कैन सी हियर उड़ीसा छत्तीसगढ़. ये आप एरियाज अगर देखें तो डार्क रेड में जो एरियाज है, ये एरियाज है. सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है ये. ऑल राइट. अगर हम इसे कंपैरिजन करके दिखाते हैं नंबर्स में, तो 2018 के आसपास में, in 2018 I can present to you some more data. 126 के आसपास डिस्ट्रिक्ट ऐसे हुआ करते थे जहां पर इन्फ्लुएंस था, माविस्ट इन्फ्लुएंस वाज देयर. एंड इन अक्टूबर, largely at the end of 2025, such number of such district is only 11. कितना रह गया है? 11 के आसपास रह गया, which is good, which is very good. अब यहां से होगा क्या? अब अगर ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, सो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को हम यहाँ पर एक पुश दे सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फियर विल बिकम डेफिनेटली वेरी गुड. एंड बिहार और जो बिहार के जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर भी इसका बेनिफिट मिलेगा. ऑल राइट गाइज, सो नाउ यू नीड टू नो हु आर माविस्ट्स. माविस्ट कौन है? देयर वाज अ थिंकर इन चाइना. ऑल राइट, देयर वाज अ लीडर इन चाइना and his name was Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung was the man who led the Chinese Revolution. China में जो Chinese Revolution है, all right, that was led by Mao Tse-tung. And Mao Tse-tung used to say कि by the use of the power we can control the state and we can capture the control of the state. Power का use करके जो state है, स्टेट मशीनरी है, उसको कैप्चर, उसको हाईजैक किया जा सकता है. दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द माओ त्से तुंग. नाउ दिस आइडियोलॉजी ऑफ माओ त्से तुंग इज एसोसिएटेड, कुछ यहाँ पर कनेक्शंस है, आपको यहाँ पर देखने चाहिए these connections. Mao Tse-tung from China, all right, and Mao Tse-tung
was a communist leader. Who was he? He was a communist leader. And you all know very well, communist is a radical form of socialism. All right, radical form of socialism. Socialism, which is a welfare ideology, welfare of the industrial workers, farmers, उनकी बात करता है, और उसी का रेडिकल फॉर्म इज नोन एज द कम्युनिज्म. बताने के लिए तो बहुत ढेर सारी बातें हैं. अंडर द ideology of the Karl Marx, haves and have nots, the goal of socialist revolution, all that multiple things we have. Fine, but GS के point of view से कम्युनिस्ट लीडर है माओ से तुंग चाइना का. ऑल राइट, एंड स्टेट मशीनरी को हाईजैक करने की बात करता है विद द हेल्प ऑफ पावर, पावर का यूज करके. फाइन, ओके, ठीक है. अभी ये आइडिया दुनिया भर के और भी कंट्रीज में पहुंचता है. एंड नाउ अब जो स्टेट है, अभी आप समझना, स्टेट को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, दोज हु सपोर्ट स्टेट, दे आर नोन एज राइट विंगर्स. क्या बुलाते हैं इनको? राइट विंगर. एंड दोज हु अपोज स्टेट, all right, they are known as left wingers. This right wing and left wing, this ideology is associated with the French Revolution. ये आइडिया निकलता किधर से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकलता है. Those who supported monarchy known as right wingers, those who opposed monarchy left wingers, और centrist भी निकलते हैं इसी से. तो यहां से टर्म निकलते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं. सो टेक्निकली लेफ्ट विंग के लोग, ऐसा नहीं होता है कि ये सारे वायलेंस की बात करते हैं. अंडर द लेफ्ट विंग, अंडर द लेफ्ट विंग सम फॉलो रेडिकल मेथड्स फॉलो करते हैं. एंड सम आर रिफॉर्मर्स. कुछ एक लोग ग्रुप यहाँ पर ऐसा होगा, वो रिफॉर्म्स की बात करेंगे. सो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म बोथ आर एसोसिएटेड टू द लेफ्ट विंग. यस, and we all know very well India is a socialist state. It is clearly mentioned in our preamble. All right, so socialism is also associated with the left wing, but moderate left wing. That means any reform, कोई भी reform होगा, reform through democratic methods, democratic method की help से reforms होंगे. समझ रहे हैं? पावर का यूज नहीं होगा, ये आइडिया है. But in India, when we got the independence, all right, when we got the independence 1947, all right, India got the independence, and we all know very well in our country inequality was present. खूब सारी inequality है, especially with respect to land distribution, especially with respect to land distribution. All right, okay, so government of India started multiple programs to address this problem, and we all know very well that first constitutional amendment is also associated with the land reforms. All right, so government of India was pushing for the land reforms. लगातार land reforms को push कर रही थी government of India, but on ground जो उसका impact है, that was very less, negligible था. एंड इसी में एक रिसेंटमेंट लोगों में आना शुरू होता है. एंड इन बंगाल देयर वाज अ प्लेस नक्सलवाड़ी, एंड चारू मजूमदार, कानू सान्याल एटसेट्रा, कुछ लीडर्स हैं, अर्ली लीडर्स हैं, ये एक मूवमेंट खड़ा करते हैं. दैट वाज अ वायलेंट मूवमेंट, वायलेंट स्ट्रगल शुरू करते हैं. और यहीं पर ये जो नक्सलवाड़ी एरिया है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नक्सली, as well as they were influenced by the ideology of Mao Zedong. That's why known as Maoist. अभी समझ में आ गया होगा Maoist क्यों कहते हैं. And because they oppose the government, that's why known as left wing. And उसमें भी अगर आप देखें तो लेफ्ट विंग में भी ये लोग क्या है? रिफॉर्मर्स हैं? नो, दे आर एक्सट्रीमिस्ट्स. ऑल राइट, सो इसी को हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आपने अगर ये बात बोल दी
सो क्रॉस क्वेश्चनिंग आगे चल करके यहाँ से कुछ पूछ लिया, नाउ यू नो द थिंग्स, फंडामेंटल्स आपको मालूम चल गए। Now, over the period of time when all these things started, this movement started, all right, violent struggles started in this area. So, government of India was trying to control all these things. The northeast तक चीजें पहुंचती हैं, area झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, some parts of Maharashtra as well, then Tamil Nadu, Kerala तक पूरा रेड कॉरिडोर, पूरा ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है कि जहां पर इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वाज सो मच। आप देखो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑल राइट, एरियाज ऑफ महाराष्ट्र वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द माविस्ट एंड माविस्ट वगैरह का जो इन्फ्लुएंस है। आप इधर देखो, सो झारखंड बेल्ट एंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ऑल राइट, एंड स्पेशली द बस्तर रीजन जहां पर दंडकारण्य रीजन, DKR, दंडकारण्य रीजन आता है। अब ये जो बस्तर एंड दंडकारण्य रीजन है, दिस वाज द एरिया ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ये घने जंगलों का डेंस फॉरेस्ट एरिया है। एंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट एरिया दीज माविस्ट एंड नक्सल्स दे स्टार्टेड रनिंग देयर गोरिल्ला वॉरफेयर, यहाँ से वो अपना गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करते हैं। फाइन, एंड डेफिनेटली चाइना एंड पाकिस्तान से भी हमें न्यूज लगातार मिल रही थी कि ये जो एजेंसीज, इनकी एजेंसीज हैं, दे वर आल्सो हेल्पिंग दिस पीपल, सप्लाइंग मटेरियल, एक्सप्लोजिव्स, मनी, ट्रेनिंग भी, इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिल रही थी। एंड अगली जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, सो द प्रेजेंस ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो वेरी वीक। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मजबूत नहीं था यहाँ पर। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था, आउटरीच थी लोगों के बीच तक, दैट वाज आल्सो वेरी लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो वेरी पुअर। तो ऐसे में जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस भी थे, तो उनको भी वहां तक पहुंचाने में, अगर मान लीजिए कुछ वायलेंस हो गया, राइट्स कुछ भी हो गया, तो कैसे पहुंचेंगे। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स ओवर द ईयर्स। गवर्नमेंट को ये बात पता रही है शुरुआत से। So government followed the policy of guns and gulabs. कुल मिलाकर के गवर्नमेंट बेसिकली इसी पॉलिसी को फॉलो करती रही है, चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या प्रीवियस गवर्नमेंट हो। पॉलिसी ऑफ गन एंड गुलाब। सो व्हाट इज दिस पॉलिसी ऑफ गन एंड गुलाब? सो अंडर दिस पॉलिसी, लॉस्ट द मैप किधर गया हमारा? यस, द पॉलिसी ऑफ गन्स एंड गुलाब। गन्स एंड गुलाब, दिस मीन्स कि जो रिटेलिएट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ठीक है, उनको हम उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, टॉक्स, निगोशिएशंस, बातचीत, तो हमने उसको भी यहाँ पर साथ में फॉलो किया। ऑल राइट, construction of roads, schools, all right, providing employment to the people in the affected areas, those who have surrendered, Naxal, Maoist, those who have surrendered, government planned rehabilitation of such people। जो बाहर निकलना चाहते हैं उनको प्रमोट किया कि आप गन छोड़ना चाहते हो, आप बिल्कुल छोड़ो, ठीक है, गवर्नमेंट विल हेल्प यू आउट, गवर्नमेंट पूरी आपकी हेल्प करेगी। इलेक्शन मशीनरी को हमने वहां तक पहुंचाया, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने शुरू किए। ऑल राइट, तो अब ऐसे में हुआ क्या कि ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट स्ट्रेंथेंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज एरियाज। नंबर वन, जो एक लेवल पर हुआ, विच इज नोन एज गुलाब कह सकते हैं आप उसको। ऑल राइट, एंड दोज हु रिटेलिएटेड, जिन्होंने रिटेलिएट करने का कोशिश किया कि नहीं नहीं फिर से रिवाइवल ऑफ द माविस्ट एक्टिविटीज, सो उनके साथ में गवर्नमेंट डेल्ट विद वेरी सिवियरली। एंड इन दिस व्हाट वी सी, गवर्नमेंट proposed a plan which is known as the Samadhan strategy. Under Samadhan, what we see as parents: smart leadership, aggressive strategy, motivation and training, all right, as well as uh, actionable intelligence, intelligence inputs ऐसे हों जिस पर एक्शन लिया जा सके, dashboard based KPIs, all right, and KRS, key result area and key performance indicators, harnessing technology, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, कि इनको एक तो फाइनेंस कट करो इन सारे ग्रुप्स का। ऑल राइट, एंड हेवी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स वगैरह भी हमने यूज करने शुरू किए। वी ऑल नो वेरी वेल कि आप अगर आप देखें बिफोर 2014 जब ऐसे बड़े सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हुए, सो समटाइम्स वी सॉ कि गवर्नमेंट
इधर एक्सट्रीम मेथड्स की तरफ जा रही थी. ऑल राइट, इधर गवर्नमेंट वाज exploring some new options. All right, when we see entry of this present government, so this present government started heavy use of the technology with in these areas. अच्छा, डेवलपमेंट भी हुआ टेक्नोलॉजी का. तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही, जो टेक्नोलॉजी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको हार्नेस करना इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, एंड डेफिनेटली दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. All right, okay, so these are the things. So at present this is a very great breakthrough of the Indian government. All right, कि 126 ये नंबर और भी ज्यादा था 2014 के आसपास में 11 पर नंबर लाना, इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट. All right, but we have certain other aspects we need to consider. हमें कुछ और चीजें भी हैं जहां पर इन्हें देखने का जरूरत है कि कुछ और भी रीजंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट established the security camps in these areas. security camps गवर्नमेंट ने लगाने शुरू किए यहाँ पे. अभी सिक्योरिटी कैंप से बेनिफिट्स हमें क्या होने शुरू हुए, क्या बेनिफिट्स हुए यहाँ पर. सिक्योरिटी कैंप्स के बेनिफिट हमें ये मिले यहाँ पर. लेट मी शो यू. एंड गाइज, अच्छा एक बात आप और देख रहे होंगे, आई गॉट सम फीडबैक फ्रॉम द एस्पिरेंट्स कि सर हिंदी में भी अगर आप ट्रांसलेशन भी ऐड कर दें इन एक्सप्लेनेशन, तो आई यूज हिंदी, मैं बिल्कुल हिंदी यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है. और अगर यहाँ भी ऐड कर देंगे तो हमारे लिए और हेल्प हो जाएगा. सम एस्पिरेंट्स अप्रोच्ड मी, सो आई स्टार्टेड एडिंग. आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही ऐड किया हुआ है. ऑल राइट, ओके, सो गेट द बेनिफिट. मैंने बोला था अगर आपको जो फीडबैक्स आते हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उसको. फाइन. Now kindly focus here. So reason for decline of Maoism, as I have already explained, civil administration outreach बढ़ाया, security camps. So benefit क्या मिला security camps का, you can see here. देखिए कि अगर कहीं पर पुलिस का प्रेजेंस ही नहीं है किसी एरिया में, ऑल राइट, डेफिनेटली दिस विल हेल्प द सेपरेटिस्ट. उनको एक एज तो मिल ही जाता है. But if government armed forces are present and they are safe, this gives a sense of security to the common man, to the common people, and increased security footprint. So इससे local लोगों का भी एक confidence बढ़ना शुरू होता है गवर्नमेंट के अंदर में भी. as well as faster response time. अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंट है यहाँ पर लोकल एरियाज के अंदर में, तो ऐसे में क्या होगा फिर कि रिस्पॉन्स टाइम, अगर कोई भी ऐसी इवेंट होती है, ऐसी घटना घट जाती है जहां पर माविस्ट अटैक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम विल बी लेस. ऑल राइट, एंड डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एज भी होगा माविस्ट के ऊपर में लोकल लोगों के लिए भी, एज वेल एज ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करना शुरू किया. ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिकली द इंक्लूजन ऑफ द लोकल्स. जो लोकल लोग हैं उनको इंक्लूड करना हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं. ऐसे होता क्या था कि लाइक सीआरपीएफ, लाइक ऑल राइट, सो जवान्स ऑफ द सीआरपीएफ मोस्टली वो उस रीजन के नहीं होते थे, उनको पता नहीं होता था टेरेन, लैंग्वेज एंड ऑल दीज थिंग्स. ऐसे में ह्यूमन इंटेलिजेंस जो लोकल्स हैं उनको भी ऐड करना शुरू किया गया. तो ऐसे में जो सीआरपीएफ का इफेक्टिवनेस है, दिस इफेक्टिवनेस इंक्रीज्ड. ऑल राइट, सो दिस थिंग हैपेंड हियर. As I already discussed with you, boost to infrastructure governance, और आप यहाँ पर देख लेंगे expanded governance and direct outreach, all these things also happened here. All right, and now after this what we see aspirants, आगे के लिए क्या challenges हो सकते हैं, what may be the challenges ahead, way forward क्या हो सकता है इसमें. So challenges की अगर हम बात करें तो अभी भी in these areas deep rooted socio economic issues, अभी भी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो opportunities, employment opportunities are limited. Economic जो exclusion है, economic exclusion is more. So we need to discourage this. We need to bridge this gap. उसको बढ़ने का जरूरत रहेगा गैप को. इसके अलावा आप यहाँ पर देखें सोसाइटी में भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी दिखते हैं ट्राइबल्स के साथ में, एज वेल एज राइट बेस्ड डिमांड्स, लैंड, लाइवलीहुड एंड ट्राइबल राइट्स, जल जंगल जमीन की जो बातें हैं. ऑल्दो इनको एडजस्ट करने के लिए वी हैव मेड अ लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, हमने एफआरए बनाया हुआ है. सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन को एडजस्ट करने के लिए वी हैव पेसा, दैट इज पंचायती राज, एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज इन द शेड्यूल्ड एरियाज. तो पेसा एक्ट है हमारे पास में, but the proper implementation is required. All right, then
democratic use of the democratic methods and the transparent sensitive governance to prevent resurgence. गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, देखो ट्राइबल्स होते हैं, you need to keep one thing in your mind. Tribals are very assertive about their culture, fine, very possessive about their culture, customs, language, beliefs. गवर्नमेंट शुड बी सिंपथेटिक, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, सेंसिटिव सिंपथेटिक होनी चाहिए कि जो उनके लैंग्वेज, कल्चर, बिलीफ्स हैं उनको ध्यान में रख करके चले, रिस्पेक्ट करे। ऑलराइट, अगर इम्पोजिशन करेंगे तो फिर वो इम्पोजिशन करेंगे तो रिटेलिएशन निकल के आता है। And if you see the trend, even this was the trend under the colonial rule as well. When British government was present in India, we all know Bhil uprising, Santhal uprising, Munda uprisings, all right. तो ब्रिटिश को भी बात समझ में आई थी, तो हमें भी वो बात समझनी पड़ेगी। हमारे अपने लोग हैं, ऑल राइट, और सेंसिटिव तरीके से हमें इस मैटर को डील करने का जरूरत रहेगा। फाइन गाइज, so I have highlighted the challenges as well as the way forward, road ahead, यहाँ पर क्या हो सकता है। फाइन, now so this topic is done, बड़ा था थोड़ा सा। after this aspirants, the next topic is rare white fronted goose. What is this? ये है क्या rare white fronted goose? Actually this goose spotted in Bihar. कहाँ पर spot हुआ है? बिहार में spot हुआ है, all right. And ये Jamui is a place, and here there Nagi bird sanctuary is present. Nagi bird sanctuary is a rare greater white fronted goose. मतलब आप ऐसे समझे, आप देखें, इट्स अ रेयर व्हाइट फ्रंटेड गूज। इट्स एक हंस जैसे होता है, हंस लोकल में कुछ वैसा एक स्पीसीज है, ऑल्दो रेयर है, बट फिर भी अगर आप IUCN का लिस्ट देखें, ऑलराइट, IUCN स्टेटस की अगर आप बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न में देखने को मिलता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा लिस्ट है, फाइन, प्रोटेक्शन के लिए खास तौर पे इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2024, उसमें हमने इसको रेयर कैटेगरी के अंदर में प्रोटेक्शन दे रखा है, प्रोटेक्शन उसको दिया है। ओके, सो अभी है क्या चीज, एस्पिरेंट्स, ये इंडिजिनस है नहीं, माइग्रेटरी बर्ड है, और ये कहाँ पर बेसिकली मिलता है? इन द नॉर्थ अमेरिका। इन नॉर्थ अमेरिका कनाडा रीजन जो है वहां पर कनाडा रीजन में देखने को मिलता है, एज वेल एज रशिया का जो रीजन है, इवन ग्रीनलैंड, अलास्का बेल्ट है, वहां पर हमें ये बर्ड देखने को मिलता है। आप समझो नियर अबाउट 13-14,000 उड़ करके वहां से ये बर्ड कहां पर पहुंच गया? बिहार पहुंच गया। ऑलराइट, सो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की जर्नी कर लेते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, फाइन। सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स वन थिंग, द बेटर हेल्थ ऑफ द नागी बर्ड सेंचुरी, कि नागी बर्ड सेंचुरी के अंदर में फ्लोरा एंड फौना इतना बेटर होगा, बायोडाइवर्सिटी इतनी बेहतर होगी कि इस माइग्रेटरी बर्ड को यहाँ पर अपना हैबिटेट मिला, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई दिस बर्ड इज प्रेजेंट। ये बर्ड वहां से यहाँ पर पहुंचा और रह रहा है। अभी दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू दिस बर्ड इन इंडिया में हम इनको उनका हैबिटेट, फूड वगैरह मिलता रहे। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और ऐसे में अगर चीजें बेहतर रहती हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, इको टूरिज्म भी, अब इसमें होगा क्या, अगर ऐसे बर्ड्स जो रेयर बर्ड्स हैं वो नागी बर्ड सेंचुरी जमुई बिहार में मिल रहे हैं, डेफिनेटली जो बर्ड वॉचर्स हैं, बर्ड लवर्स हैं, वो इस एरिया में आना शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर मंथ्स में। फाइन, कि लेट्स विजिट टू जमुईज नागी बर्ड सेंचुरी इफ यू वांट टू स्पॉट द ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गूज। इंडिया में ही देखना है, रादर देन विजिटिंग टू अमेरिका, यू कैन विजिट टू जमुई। आप जमुई चलो, वहां पर आपको मिल सकता है। ऑल राइट, ओके, फर्दर आगे हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यू कैन सी हियर, आप यहाँ देखें, और इट शोज द इम्प्रूव्ड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, फाइन। और इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, आप ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इट्स अ फैक्ट, छोटा सा फैक्ट है यहाँ पर ये, फाइन। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, अब इम्पोर्टेंस क्या है, अगर ऐसे बर्ड्स इंडिया में हमारे यहाँ पर मिल जाते हैं, आते हैं यहाँ पर, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस ये रहता है
the climatic conditions, climate and habitat suitability for migratory birds in Bihar. All right. This is a kind of Bihar specific current affairs. Fine. As well as India's role as part of global migratory flyways, कि जो बर्ड्स हैं, अलग अलग बर्ड्स एंड फ्लोरा, बर्ड्स एंड कुछ और भी एनिमल्स हैं, लाइक ओलिव रिडले टर्टल्स हैं, ओलिव रिडले टर्टल्स हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी ओलिव रिडले टर्टल्स भी एक लंबी डिस्टेंस तय करके जो है हमारा जो उड़ीसा वगैरह के जो कोस्टल रीजन है वहां तक पहुंचते हैं। ऑलराइट, तो वो तो बड़ा बहुत पॉपुलर है एस्पिरेंट्स। फाइन। ओके, सो आप यहाँ पर देखें, सेंट्रल एशियन एंड ईस्ट एशियन फ्लाईवेज में इंडिया का एक वैल्यू इज इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स को लेकर के खास तौर पर। देन फर्दर यू कैन ऐड कि इस तरह की चीजों का बिहार के अंदर में होना इनहेंस्ड लोकल एफर्ट, जो लोकल लेवल पे जो एफर्ट्स है फूड हैबिटेशन प्रोटेक्शन के लिए, अगर इसको और अच्छा करेंगे, इट कैन बूस्ट एवियन बायोडाइवर्सिटी एंड इको टूरिज्म। एंड वी ऑल नो वेरी वेल इन बिहार वी आर पुशिंग फॉर द इको टूरिज्म को लगातार हम पुश कर रहे हैं, सो दैट जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ऑफ द बिहार कैन गेट अ बूस्ट, उसको एक और ऐसा सेक्टर मिले टूरिज्म का। एंड डेफिनेटली इन बिहार वी हैव a lot of potential of tourism, टूरिज्म का एक अच्छा खासा पोटेंशियल है बिहार के अंदर में। जरूरत इस बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड कंजर्वेशन को बेहतर किया जाए। ऑलराइट, ओके, सो दीज आर द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस बर्ड। देन वी हैव अनदर बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, हमारे पास एक और टॉपिक है विच इज ऑल्सो बिहार स्पेसिफिक। Aspirants, in previous sessions I have highlighted the प्रोडक्शन ऑफ द राइस, हमने राइस प्रोडक्शन की बात करी हुई है, एंड राइस इज द वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ऑलराइट, इसकी बातें भी हमारी आपकी हुई है। नाउ इन बिहार ऑल्दो वी हैव सरप्लस वाटर, फाइन, वो ठीक है, बट क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ रियलिटी। फाइन, एंड द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड ऑल दीज, इट्स ग्रोइंग, बढ़ रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग इन बिहार। ऑब्वियसली टूरिज्म बढ़ेगा तो हॉस्पिटैलिटी उसके साथ साथ में बढ़ेगा, एंड डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फूड इज आल्सो ग्रोइंग, आल्सो इंक्रीजिंग। आप देखो तो बिहार से सिक्किम जाना भी बड़ा आसान है, सिक्किम में वी ऑल नो वेरी वेल ऑर्गेनिक स्टेट है दोस्त। फाइन एस्पिरेंट्स, दैट्स व्हाई दिस आइडिया इज गेनिंग ग्राउंड इन बिहार, ऑलराइट, एंड मैनी फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एग्री स्टार्टअप्स के अंदर में दे आर पुशिंग फॉर दिस। तो बिहार के अंदर में इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ऑलराइट, देयर इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। कहां पर बनाया गया? इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नाउ व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है इसका? पर्पस इज दिस to demonstrate soil free and water efficient farming. All right, and there is a country which mastered this soil free and water efficient farming, and that nation is Israel. And we share very good relation with Israel, as well as हमने अपने बहुत से स्कॉलर्स को इसराइल भेजा भी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कि वर्टिकल फार्मिंग इसराइल में दे प्रैक्टिस द वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि लैंड इज वेरी लिमिटेड इन इसराइल। ऑलराइट, and the way the population is growing in India, so in near future we may also face such kind of problems. Fine, so we need to invent such techniques. All right, we need to develop such kind of techniques in India as well, जहां पर soil free and water efficient farming हम कर सके। Fine, and under this some experiments are going on in Nalanda Bihar Center of Excellence में, and under this two techniques are very interesting, very important, you should know. So these techniques are known as the hydroponics and aeroponics. Fine, what is the meaning of hydroponics and aeroponics? Guys, hydro means water, hydro means water, all right, water, and aero, that is air. Fine, what happens here, you can see these are the saplings. All right, these saplings get, इनका जो सिस्टम है, यहाँ पर रूट्स वगैरह हैं, ये आप देखें तो यहाँ पर ये पानी है। ऑल राइट, एंड दिस वाटर इज न्यूट्रिएंट रिच वाटर, ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर है।
फाइन, यहाँ पर टाइमर वगैरह लगा रखे हैं, एयर पंपिंग लगा रखी है, फाइन, और यहाँ से ये पानी का इनको सप्लाई दिया जाता है। एंड ये ग्रो ट्रे है यहाँ पर। ऐसे में these plants get the nutrition from the water, water से इनको मिल रहा होता है न्यूट्रिशन। ऑल राइट, सो जो रूट्स हैं इनकी, अगर उनको आप देखो तो देयर इज नो सॉइल, यहाँ पर सॉइल नहीं है। ऑल राइट, सो जो सरफेस है यहाँ पर अगर आप देखें तो सरफेस सॉइल का जरूरत यहाँ पर है ही नहीं, और ऐसे में न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ही ये पौधे ग्रो करते हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। अंडर दिस we see another concept, that is aeroponics. Under the aeroponics what we see, roots hang, आप देखें यहाँ पर उनके रूट्स है, ये देखिए आप हवा में हैंगिंग, एयर में हवा में हैंग कर रही है। एंड देन न्यूट्रिएंट रिच वाटर यहाँ पर भी है। ऑल राइट, और इनको ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर सप्लाई किया जाता है, और ऐसे में स्प्रिंकलर्स हो सकते हैं, ठीक है, आप देखें तो स्प्रिंकलर्स ही बेसिकली यूज किए जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह का यूज भी कर लेते हैं कई बारी। These are the various methods which are used under the aeroponics. Fine. You can see here aeroponics, plant roots hang in the air and are misted with nutrient rich water. यहाँ पर भी nutrient rich water होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरा सॉल्यूशन है और इसके अंदर में ही डिप्ड होंगे जो पौधे हैं, और ऐसे में क्या होगा, ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर है क्या चीज, नीड ऑफ लेस वाटर, क्या हो रहा है, नीड ऑफ लेस वाटर, पानी कम चाहिए, लिमिटेड एरिया चाहिए, और वहां पर भी एग्रीकल्चर हो जा रही है। ऑल राइट गाइज, सो हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करता है ये, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट्स आर स्टार्टेड फ्रॉम सीड्स, सीड्स डाले जाते हैं, सीड्स टू सैपलिंग्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। Roots are suspended and receive nutrients, water and oxygen directly in precise amounts. आप ध्यान रखें कि this type of agriculture is controlled agriculture. All right, temperature, humidity, etc. Everything is maintained. All right, and crop cycles are completed in 60 days. Near about 60 days में complete होता है, allowing multiple harvest per season. Fine. सो अब यहाँ पर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, खासतौर पे वेजिटेबल्स जो ग्रो किए जा रहे हैं, अब अगर आप यहाँ पे देखें, सो पोटैटो, टोमेटो, लेट्यूस, ऑल राइट, एंड बॉक्चाई, बासिल, इस तरह के जो फसलें हैं यहाँ पर ये उगाई जा रही हैं। एंड दीज आर मार्केटेड टू पटना, गया एंड राजगीर, इन जैसे मार्केट्स में। एंड अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनको रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। फाइन, अब आगे आप यहाँ पर देखें, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। गाइस, पहला तो बेनिफिट आपको बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज व्हाट, वाटर एफिशिएंट है, सॉइल फ्री है, ऑल राइट, एज वेल एज दिस इज फ्यूचर फार्मिंग, फ्यूचर एग्रीकल्चर, जो फ्यूचर में जो एग्रीकल्चर होना है उसके लिए, फॉर दिस दिस में बी वेरी यूजफुल, बहुत काम आने वाली है। एज वेल एज लेस रिस्क ऑफ द डिजीजेस, डिजीजेस का रिस्क भी इसमें क्या रहने वाला है, लेस, खास तौर पे सॉइल बॉर्न डिजीजेस जो हैं उनको तो हम एलिमिनेट ही कर सकते हैं। ऑल राइट, फर्दर वी कैन से हियर वी कैन ग्रो हाई वैल्यू क्रॉप्स, जिससे कि फार्मर्स का जो इनकम होगा दैट कैन बी ऑल्सो इंक्रीज्ड, एंड डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, जो हमारा एजेंडा, जो हमारा गोल है, वी कैन अचीव दैट गोल एज वेल। देन मार्केट पोटेंशियल, produces quality crops for premium markets and hospitality. Fine. Even अगर अच्छा आप समझे कि आजकल क्रॉप्स के अंदर में इस बात को लगातार चेक किया जाता है, टॉक्सिक मटेरियल्स कितने हैं, फाइन, एज वेल एज पेस्टिसाइड्स वगैरह कैसे कितने यूज किए जा रहे हैं। ऑल दीज आर द थिंग्स, कंज्यूमर बहुत अवेयर हो रहे हैं। एंड हाई वैल्यू मार्केट्स इवन outside India, वहां पर भी we can explore, as we have, we can connect this with the Agri Udan. We have Agri Udan scheme. All right. So under the Agri Udan scheme, एयरपोर्ट और एरोप्लेन कनेक्टिविटी के ऊपर में हम लोग फोकस करते हैं, एंड दैट कैन बी यूज्ड हियर, and we can export the vegetables from India to the neighboring countries as well,
जहां पर उनका जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वहां पर हमें एक अच्छी डिमांड मिल सकती है। इवन इनसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर में भी वी कैन गेट अ वेरी गुड डिमांड, ऑलराइट, एंड डेफिनेटली दिस कैन प्रोवाइड अ कुशन टू द इकोनॉमी ऑफ द बिहार, ऑलराइट, एंड डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। सो इंपॉर्टेंस में क्या निकल करके आता है? जो मैंने बताया है आप वही पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है। क्लाइमेट स्मार्ट एंड रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग होगी, ओके, एंड प्रोवाइड्स अ मॉडल फॉर अर्बन एंड पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के जो अर्बन सेंटर्स हैं। यूजुअली व्हाट वी थिंक कि इन द अर्बन सेंटर्स एग्रीकल्चर कैन नॉट बी डन, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो अगर एग्रीकल्चर करना है देन वी नीड टू गो इन सम रूरल एरिया, किसी रूरल एरिया में चलना पड़ेगा, उधर ही एग्रीकल्चर हो सकती है। बट such kind of techniques may provide us an alternative to grow to practice the agriculture in the urban centers as well as पेरी अर्बन, जो अर्बन सेंटर्स हैं जो उसके आसपास के एरियाज हैं वहां पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। as well as farmer income I have already highlighted. Then promote scientific farming, definitely, all right, and sustainable agriculture, and this is aligned with the goals of sustainable agriculture and food security, all right. So these are the things associated here, जो चीजें यहाँ पर थी मैंने बता दिया, दिखा दिया आप लोगों को। After this we have next topic is India's GDP growth and a first advance estimate of 2025-2026. Now what is this estimate about? ये estimate किस बारे में है, क्या है यहाँ पर? Please see here. So aspirants, this estimate is presented by the Ministry of Statistics and Program Implementation, which is known as the MOSPI. And you can see here two types of estimates. Number one, about the real GDP growth. Second one is the nominal GDP growth. Okay, please focus. So first advanced estimate projecting the real GDP growth at 7.4% and nominal GDP growth has slowed to 8%. Now, what is real GDP growth? What is nominal GDP growth? Listen, guys. Real GDP growth is associated with the output of the products, जो products हैं, services हैं, जो proper उनका output है, ओके, इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करके हम देखते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ को। एंड जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं, करंट प्राइसेस के ऊपर में जो जीडीपी है दैट इज नोन एज द नॉमिनल जीडीपी। दिस इज व्हाट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज इंपॉर्टेंट फॉर द फिस्कल स्पेस, फिस्कल पॉलिसीज को बनाने के लिए फिस्कल स्पेस में, ठीक है। लाइक अगर हम बजटरी डेफिसिट वगैरह की बात करते हैं तो उनके साथ में नॉमिनल जीडीपी का एवं टैक्स बायोंसी, टैक्स कलेक्शन, जीडीपी डेट रेशो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वहां पर वी टेक केयर ऑफ द नॉमिनल जीडीपी मोर, इस पर हम ध्यान रखते हैं ज्यादा, ऑलराइट। नाउ तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो, सो 7.4 रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी 8, ऑल्दो नॉमिनल जीडीपी इज लेस, नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर कम है, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। बट यहाँ पर एक दूसरी चीज भी है कि द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी इज लेस, दोनों में जो डिफरेंस है वो कम है। तो ऐसे में एक इंडिकेटर यहाँ से निकल के आता है, दैट इंडिकेटर इज व्हाट कि आप इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट थोड़ा ठीक तरीके से, बेटर तरीके से मैनेज कर रही है, ऑलराइट। ओके, नाउ लेट्स एग्जामिन some more facts and let's try to interpret these facts, all right. So I have already highlighted real GDP 7.4 and nominal you can see here 7. सॉरी, ठीक है, तो हिंदी में अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, 8%, एंड डिफरेंस दोनों में कितने का है? 60 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। बट दिस अगर आप देखें तो दोनों में जो गैप है दिस इज लोएस्ट सिंस 2011-12 एंड एट प्रेजेंट द बेस ऑफ द जीडीपी, अगर आप प्रेजेंट में देखो तो बेस ऑफ द जीडीपी इज व्हाट? बेस ऑफ द जीडीपी एट प्रेजेंट इज 2011-12 and there is a pressure on the government change the base of the GDP, जो बेस ईयर है उसको आप चेंज करो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF also highlighted the need to change the base of the GDP। जीडीपी में जो बेस ईयर का है
वो बेस ईयर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब देखो 2011-12 से हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 2025-26 में पहुंच चुके हैं। बेस ईयर का मतलब ये हो गया कि जो प्राइसेस हैं, जो प्रेजेंट के प्राइसेस हैं, आप कहाँ से मेजर कर रहे हो। वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द रेट्स प्राइसेस ऑफ 2011-12। तो नियर अबाउट 14 to 15 ईयर्स हो गए, डेटा चेंज होता है, बेस ईयर चेंज करने का जरूरत है। फाइन। सो नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, according to the nominal GDP, all right, so the size of the Indian economy is near about 3.97 trillion, so near about 4 trillion के आसपास में ही है हम लोग यहाँ पर। एंड फर्दर इफ यू सी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या है, तो थोड़ा सा पिक्चर और बेटर आपको समझ में आती है जीडीपी की। व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो यू कैन से हियर manufacturing, first of all manufacturing, then agriculture, all right, then services. These are the important sectors of Indian economy, and let's examine, थोड़ा सा इसको देखना शुरू करते हैं। So in manufacturing you can see rebound to 7% growth, थोड़ा सा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ दिखता है उसके अंदर में। सो इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ द पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो हम लोग दे रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक। और इसके अलावा और क्या है, डोमेस्टिक डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है, वो एक सपोर्ट हो सकता है। सप्लाई साइड रिफॉर्म्स भी हमने किए हैं। और इंटरेस्टिंग, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस कि मैन्युफैक्चरिंग शोड ग्रोथ डिस्पाइट एक्सटर्नल टैरिफ, तो एक्सटर्नल टैरिफ के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग आगे गया है। इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द नीड, द नीड इज द डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड का आना। एंड वी ऑल नो वेरी वेल behind domestic demand certain other reforms done by the government are also working, like tax reform, GST reforms, all right. So because of the tax reforms and GST reforms and push given to the industries, all right, so जो buyers हैं definitely buyers को थोड़ा सा एक उनके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ा। एंड दैट्स वाई जो बाइंग है वो जब होती है तो मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल है वो ठीक से चलता है। ऑलराइट, नाउ further we see here agriculture, although in the last year agriculture showed some consolidation, 4% से थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को मिला ग्रोथ एग्रीकल्चर में, बट एग्रीकल्चर फिर से 3.1% के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। एंड दिस शोज द नॉर्मलाइजेशन आफ्टर अ हाई बेस, शुरुआत लास्ट ईयर ठीक रहा, फिर से वो जो 3% के आसपास का ग्रोथ है वहां पर आता है। बट अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है गाइज, एग्रीकल्चर सेक्टर इज शोइंग डाउनहिल ट्रेंड, ऑलराइट, and this downhill trend may affect the demand coming from the rural areas, and we all know very well a large chunk of the population is living in the rural areas. So ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि रूरल एरियाज से जो डिमांड आता है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। डेफिनेटली रूरल डिमांड अगर डाउन जाएगा तो ये कई सारी इंडस्ट्रीज लाइक क्लॉथ इंडस्ट्री हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, एफएमसीजी ग्रुप हो गया, definitely these sectors may face some pressure because of the declining rural demand, right? After this we see services, so service sector like IT, finance, tourism, एक्सपोर्ट, ये अभी भी इंडिया के अंदर में लीडिंग सेक्टर बना हुआ है विच इज रनिंग द इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, राइट। एस्पिरेंट्स, now I would like to highlight another thing here. It is what? It is what? With respect to the private final consumption expenditure, PFCE. All right. Please focus here. PFCE, private final consumption. All right. Private final consumption expenditure. All right. PFCE stability shows consumption resilience, and investment revival supports long-term growth, state-led spending offsets private agitation. अब यहाँ पर है क्या चीज,
जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, वो भी ठीक ठाक है फिलहाल तो। ऑल राइट, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल राइट, पॉलिसी कंटिन्यूएशन जो है, ऑल दीज थिंग्स आर providing a support to PFCE. All right. So आप ऑल्दो यहाँ पर अगर हम देखें तो PFCE जो है वो हालांकि तो डाउन गया है। आप अगर आप पास्ट में देखें तो इट वाज 7.2%, एट प्रेजेंट इट इज 7%। देयर इज अ स्लाइट डिक्लाइन, थोड़ा सा डिक्लाइन भी है यहाँ पर, फाइन। बट फिर भी आप गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ दैट स्पेंडिंग एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव है। बट देर इज सम चैलेंज एज वेल, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी सी एस्पिरेंट्स? चैलेंज इस बात का है कि वी आर आइंग फॉर द न्यू जीडीपी सीरीज। हम अभी आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू जीडीपी सीरीज दैट इज चेंज इन द बेस ईयर। सो अगर हम बेस ईयर के अंदर में चेंजेस करेंगे, अपडेटिंग द बेस ईयर, इससे एक्यूरेसी आएगी एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम लोग गए हैं, सर्विसेज में एक्सपेंशन हुआ है। और राइट, सो इसका इम्पैक्ट क्या है, राइट वो हमें देखने को मिलेगा ज्यादा बेटर व्हेन न्यू जीडीपी सीरीज विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ऐसे में चांसेस ये भी हो सकते हैं, खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड पीएफसीई में जो डाउनहिल ट्रेंड है, इसका इम्पैक्ट जो जो नया डेटा है, हो सकता है कि वहां पर हमें ये ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ ना दिखे, ये डाउन होती हुई दिखे, फाइन। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं बजटरी एंड फिस्कल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, तो लोअर नॉमिनल जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है जब वो डाउन जाता है, तो ऐसे में टैक्स बायोंसी, टैक्स बायोंसी मीन्स कि टैक्स कलेक्शन कितना होगा, लोगों जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स कितना आना चाहिए हमारे पास में, सो वो एस्टिमेट के ऊपर में आता है प्रेशर, बिकॉज ऑफ द लो नॉमिनल जीडीपी, फाइन। एंड इफ टैक्स बायोंसी अगर वो लिमिट होती है, अगर वो डाउन जाती है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेफिसिट टारगेट है, गवर्नमेंट कहाँ तक लोन ले सकती है, बोरोइंग्स ले सकती है, जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग, जो खर्च करने का जो लिमिट है, क्योंकि आपके पास जब इनकम कम, आपको दिख रहा है इनकम कम आएगी मेरे पास में, ऑब्वियसली यू विल लिमिट योर एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर आप कहीं ना कहीं लिमिट करोगे ही करोगे, ऑलराइट। ऐसे में होगा क्या, मेकिंग डेफिसिट टारगेट्स हार्डर टू अचीव विदाउट एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन। एक ही चीज होगी कि कहां पर हमें खर्च करना चाहिए और कहां पर खर्च नहीं करना चाहिए। सो दिस इज अ नेगेटिव साइड। देखो, लो डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, वो भी बेटर है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। बट आप इस बात को समझे, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में वी हैव सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस एज वेल। कॉन्ट्राडिक्शन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी पर हमारा फोकस ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल पर हम ज्यादा फोकस कर गए, तो मैनी एट टाइम्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर मार्जिनलाइज्ड, वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं, वो कॉर्नर हो जाती हैं, फाइन। सो द लो रियल, द लो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर इसी डिफरेंस को, इसी डार्क साइड को हमारे सामने लेकर के आता है, प्रेजेंट करता है। ऑल राइट गाइज, आफ्टर दिस, सो अब आगे क्या हो सकता है, व्हाट मे बी द फ्यूचर वे, राइट, भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। Government can do one thing. Government can provide a push to investment, support to investment and manufacturing. All right, private investors, FDI के through investment करना, ease of doing business को और better करना, single window system को आगे बढ़ाना. All right, and we are pushing for these reforms. We all know very well. Recently, Government of India introduced labor reforms. जो labor bills हैं, ऑलराइट, उनको 4 कोर्ट्स के अंदर में ला करके हमने इंट्रोड्यूस किया है, सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लेबर लॉज, ऑलराइट, फॉलोइंग द ग्लोबल नॉर्म्स। इन जीडीपी में भी हम लोग वही करने जा रहे हैं। सो these acts done by the government of India definitely may provide a support to investment and manufacturing as well as improve farm productivity. अभी इसे आज की ही क्लास में आपने देखा,
hydroponics, aeroponics. All right, so these are new technologies, and inclusion of these technologies in the agriculture may increase the productivity. So if the productivity will be increased, then definitely efficiency अपने आप आगे जा रही, productivity is directly associated with the efficiency. All right, so less input and more output, this will be a better thing. As well as maintain fiscal prudence. So ये बिल्कुल किसी भी गवर्नमेंट के लिए फिजिकल प्रूडेंस को मेंटेन करना, अपना एक्सपेंडिचर एज वेल एज इनकम, देयर हैज टू बी अ बैलेंस. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऑलराइट, इन सब में एक बैलेंस होना चाहिए. सो अगर हम इस पर भी इम्प्लीमेंट, इसको भी ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. बट वी ऑल नो वेरी वेल कि फिजिकल प्रूडेंस ठीक है, हम कर सकते हैं, वी आर डूइंग, बट we have certain restrictions as well. If we want to grow faster, all right, then we need energy, and for the energy we are, especially with respect to crude oil, we are dependent on the import. हम import के ऊपर में dependent है maximum. As well as environmental things, when we talk about the electricity, then we are dependent on the thermal energy. All right guys, so some these are some hurdles in front of us, जिनकी वजह से हमारा जो फिजिकल प्रूडेंस है, फिजिकल प्रूडेंस में हम ट्रैप होते हैं. इसके अलावा सब्सिडीज, the burden of the subsidy on the Indian government is huge. Whether you see the food subsidy, whether you see the fertilizer subsidy, all right, pension and etc. all right, so अब वो ऐसे एरियाज भी हैं कि वहां पर जो रिफॉर्म्स हैं, हम रैंडमली कुछ भी रिफॉर्म्स को इम्पोज भी नहीं कर सकते हैं. ऑल राइट, बिकॉज गवर्नमेंट को पब्लिक सेंटिमेंट भी हैंडल करना ही होता है. ओके, एज वेल एज आप आगे देखें, यूज हाई क्वालिटी डेटा फॉर पॉलिसी मेकिंग. अब उसके लिए क्या है, हाई क्वालिटी डेटा आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा कलेक्शन शुड बी प्रॉपर, एंड फॉर द डेटा कलेक्शन गवर्नमेंट, with respect to, especially with respect to the welfare programs, all right, जो सब्सिडीज हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स में जा रही हैं, we cannot provide benefits to everyone. We need to rationalize these subsidies, all right, ये हमें करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. We need to rationalize especially the food subsidy, all right. ऐसे नहीं कह सकते कि we are providing free food to 80 CR people, 80 CR लोगों को हम फ्री में फूड दे रहे हैं. इसका मतलब है कि 80 CR लोग ऐसे हैं जो खुद से फूड नहीं खरीद सकते हैं, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए. ऑल राइट, कि इतने 80 CR के आसपास लोग ऐसे हो गए कि जो फूड नहीं खरीद सकते हैं, तो फिर हमारा डेवलपमेंट किस बात का हुआ? समझे इस बात को? सो हमारा गोल क्या होना चाहिए? रादर देन प्रोवाइडिंग फूड, वो तो हम देंगे, बट पुशिंग और लिफ्टिंग द पीपल फ्रॉम दैट पॉवर्टी रीजन. जो पॉवर्टी का जो साइकिल है, उस पॉवर्टी के साइकिल से लोगों को बाहर निकालना, फ्रॉम दैट विशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी, लोगों को वहां से एक्सट्रैक्ट करना, निकाल के लाना वहां से, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ऑल राइट, सो गवर्नमेंट डेफिनेटली इज पुशिंग फॉर दिस, यहाँ पर भी गवर्नमेंट पुश कर रही है. बट डेटा कलेक्शन, सो सबसे पहली चीज तो ये है सेंसस, कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द सेंसस. पहले तो सेंसस करवाएं ताकि हमारे पास में डेटा आए कि पॉपुलेशन है कितनी हमारे पास में. ऑल राइट, एंड डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स की अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है, उसके लिए भी प्रॉपर डेटा कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास में. फाइन, सो जितना बेहतर डेटा होगा उतने बेहतर प्लान्स बनेंगे. फाइन, ओके. So guys, these are the things. Data driven approach definitely can help overcome all these issues. Aspirants, it's been आज थर्ड डे है. वेनेजुएला हमारे साथ पैरेलली चल रहा है. I have discussed Venezuela issue in detail, as well as associated issue that is related to the Greenland. Fine, but today's issue is again highlighting the Venezuela issue. Venezuela issue के साथ में ही जुड़ा हुआ है. In Venezuela, थोड़ा ज्योग्राफी, this topic is more tilted towards geography. ज्योग्राफी की तरफ टिल्ट थोड़ा सा ज्यादा है. So in Venezuela, two geographic regions are in news, लगातार न्यूज में बने हुए हैं. वो निकोलस मादुरो, ठीक है, वो सब बातें हो गई. ऑपरेशन
एब्सोल्यूट रिजॉल्व सबको पता चल गया कि ठीक है, द कोड नेम ऑफ दैट ऑपरेशन वाज ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, ऑल राइट, ओके, पेट्रोलियम रिजर्व, ऑयल रिजर्व, ओके, ऑल गुड. नाउ द ज्योग्राफी, geographical terrain of Venezuela, all right, and Venezuela is definitely very interesting region, छोटा सा कंट्री है, बट अगर आप geographical terrain देखें उसका, then you will get to know कि my god, this smaller country is resource rich, highly resource rich, all right. You can see here two areas, दो areas है यहाँ पर, one is Orinoco belt, all right, you can see here Venezuela, and in Venezuela this is the Orinoco belt, ये Orinoco belt है, Orinoco is a river, Orinoco यहाँ पर एक river है, all right, as well as आप यहाँ पर देखें Orinoco river है, and you can see here Guyana Shield, Guyana Shield, this is the group of the pre-Cambrian rocks and the mineral rich rocks है यहाँ पर Guyana Shield के अंदर में, and what we see here, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, जो Orinoco belt है, this Orinoco belt is the petroleum rich, ये जो belt है Orinoco belt, all right, this Orinoco belt is the petroleum rich belt, all right, you can highlight, all right, this area is the petroleum rich area, and the petroleum present in this area, there is some problem with this petroleum, all right. What is the problem here? This is very heavy, extra heavy crude oil. And what is the meaning of this extra heavy crude oil? The density is very high, density काफी high है यहाँ पर इस crude का, so इस crude को pipeline के through दूसरे areas तक लेकर के जाना, that is a problematic thing, fine. उसमें कुछ अदर हमको कुछ सॉल्यूटेंट्स, कुछ सॉल्वेंट्स कुछ मिलाने पड़ते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिनर हो जाए, तो इसका जो मूवमेंट है पाइपलाइन के थ्रू वो इजी रहे, ऑल राइट. एंड डेफिनेटली ऑयल रिजर्व की बात तो तुमने पहले भी यहाँ पर करी है, एक्सट्रैक्शन इज वेरी लो, एक्सट्रैक्शन काफी कम है, सो अमेरिका का एक तो फिर एक फोकस ओरिनिको बेल्ट के ऊपर में है. नेक्स्ट व्हाट वी सी, गुयाना शील्ड, जो अगला फील्ड जो एरिया देखते हैं वो क्या है यहाँ पर, दैट इज गुयाना शील्ड. गुयाना शील्ड का जो एरिया है, दिस एरिया इज एक्सटेंडेड इन मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स में फैला हुआ है ये, यू कैन सी हियर गुयाना शील्ड. गुयाना शील्ड इज एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ ईस्ट South America and one of the oldest stable parts of the Earth's crust. All right, and you can see here Precambrian geological formation. Fine, and this area is extended in Guyana, Suriname, French Guiana, and southern Venezuela, northeastern Brazil, southeastern Colombia. You can see these are the ये Precambrian areas, Guyana Shield and Brazilian Shield. You can see the patches, patchy area भी देख सकते हैं कि, and this area is rich, resource rich, especially the rare earth elements, yes, as well as gold, diamond, bauxite, iron, coltan, and we all know very well this race is going on for the rare earth elements between America and China, as well as interestingly the region holds about 20% of the world's fresh water. Yes, you heard right. All right, and stores roughly 18% of tropical forest carbon. तो ये area climate control and biodiversity के लिए भी this area is very interesting and very important. All right, so now America is highlighting to America is eyeing to control all these areas, but इन सब में एनवायरमेंट को कितना लॉस होने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी. और ऐसे में अगर हम अप्रोच देखें, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, he outrightly rejects the climate change, there is no climate change, nothing is happening, all right. So definitely this temperament is going to harm or going to do a long term dent to the world scenario, जो world politics है, all right, climate and many other aspects, उनको definitely एक बहुत बड़ा loss होने वाला है with this approach. Okay guys, this is it for today's session. I think you all are enjoying these sessions. These sessions are designed, articulated in such a way so that you can get a better understanding from the point of view of the interview, all right.
सो आप नोटिस करते होंगे यहाँ पर कि रादर देन मैं ज्यादा फैक्चुअल जाने के आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ पुश कर रहा होता हूँ, बिकॉज इंटरव्यू में फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट का एक बैलेंस रहता है एंड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी बेटर. ऑल राइट, so keep watching the session. All right, subscribe the channel and like the video, and as I always say, together we can. Let's crack it. Thank you.